भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। To express our gratitude, I now invite Rotarian Vivek Arora sir to deliver vote of thanks. Please welcome them with a huge round of applause. Thank you very much, Bharati Vidyapeeth, Professor Huda. He gave me consent to do this program within a span of 5 minutes. He said, okay, you go ahead with the program. And I'm really thankful to Dr. Parul Arora and her team and the volunteers for giving us an opportunity to make traffic consciousness. And I hope whatever you have learned here, you will share with your family, friends, and relatives and make it a good place to live in India. Thank you. As we close, let us not think of this as an end of workshop, but a beginning of a pledge to follow rules, respect lives, and become responsible citizens on road. On the behalf of Delhi Traffic Police, Rotary Club of Delhi Janak, and Bharatiya Vidyapeeth, we thank all our speakers, guests, and participants for making this initiative meaningful. Before you... Thank you all the participants move towards outside the auditorium and take your refreshments, but in lines please do not maintain. So students sitting at the back, they can keep forward and going there. By the time I request all my guests to please come on the stage one by one. My ma'am, Shweta Arora ma'am from Bharati News will take your bites here itself. Please sir. I request all the guests, teachers, and the students to take their seats. We are about to start the session. Okay. Good morning, Professor M.N. Huda, sir, Director BVI CAM, esteemed members of the Rotary District 3011, respected faculty, dear students, and our honored partners, Delhi Traffic Police. It is my privilege to welcome you all to the Project Challenge, an initiative that goes beyond being just a workshop. It's a movement and a mission to create safer roads, stronger communities, and a more responsible tomorrow. The program has been made possible through the collaboration of Delhi Traffic Police, the Rotary Club of Delhi, and our host institution, Bharatiya Vidyapeeth Educational Complex, New Delhi. Friends, today's journey is not only limited to awareness, it's about empowerment, giving each of us that knowledge, that discipline, and that mindset to save lives, including our own. To set the stage, I now invite Rotarian Indu Chopra, the chairperson of District Project Challenge, to brief us on today's agenda and the vision behind this initiative. Please welcome her with a round of applause. Thank you, Anmol. Thanks, Bharatiya Vidyapeeth, for the coordination that we've done in the last 3 days. Thanks to sir. 3 दिन में sir, मतलब सुबह से लेकर रात तक हम coordinate कर रहे थे आपकी टीम के साथ. Amazing, amazing. You need a round of applause for yourself. Thank you. Have you all heard about Rotary International? It's a social service organization globally. Okay, in Delhi we represent Rotary District 3011. This is Rotary Janak Anmol that we belong to, and Rotary District 3011 has 140 clubs, and we are all doing social service. We want Bharatiya Vidyapeeth also to start a Rotaract club, sir. With your due permission,
We were just talking in the waiting room. We want you to start this. What do? We do social service in various formats. In this particular case, we've tied up with Delhi Traffic Police to train and sensitize the youth of India. You know what you are? You are the youth of India and the tomorrow of India. You agree with me? Yes? You have to take care of yourself and everybody else. And if you get data from our speakers today, you will learn how many people lose their lives due to road negligence on the roads. So our speakers are here. Our aim is to sensitize you. We have a Nukkad Natak, we have mental health experts talking to you कि अगर गुस्सा आए सड़क पे, रोड रेज हो जाए तो क्या करना है और उसको फॉलो करना, एक्सरसाइजेस करवाएंगे, करना सीट पे बैठ के, राइट? And we have CPR, a medical emergency. Sir, he's a very senior orthopedic surgeon. He will tell you how should you save anybody else when such a situation happens. Thank you for your patience. We start the program. Thank you. And now, to ignite the day, we start with the art form that speaks directly to the heart, a Nukkad Natak, performed by the spectacular Awaz group. This act would hold a mirror to the realities of our roads and awaken us for the urgency of change. Ladies and gentlemen, please welcome the Awaz group with a huge round of applause.
देखिए हम थोड़ी सी आलस या असुविधा की वजह से हम हेलमेट नहीं पहनते। इस भरी बारिश में तेज रफ्तार गाड़ी चलाने का घमंड रखते हैं और रेड लाइट पर रुकना तो हम जैसे भूल ही गए। देखिए इन सब के पीछे आपके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बहाने हो सकते हैं। आई एग्री, वी ऑल आर एग्री, बट ध्यान रखिए हादसा बहाना नहीं देंगे। आपकी एक लापरवाही आपकी जान भी ले सकती है। तो कृपया करके इन बातों का ध्यान रखें और चलिए इस बात को और अच्छे से समझने के लिए चलते हैं नाटक के अगले दृश्य की ओर। अरे रुको तो, कहीं नहीं जाना, तुम मेरे साथ नए शोरूम अरे में। पापा क्या क्यों हो रहा है? अरे भूल गई कि तुम्हारे बेटे का नाम बोलते हैं। अरे वो तो बाइक साउंड जा रहा है, किसने क्या हो गया? अरे अच्छा वेलकम सर, वेलकम। हेलो आइए सर। मम्मी सर बोल रहे हैं। हाँ सर सुनिए, कोई सस्ती टिकाऊ माइलेज वाली बाइक। स्प्लेंडर। हाँ हाँ पापा मेरी पर्सनैलिटी आपको स्प्लेंडर वाली लगती है? हाँ बेटा दोनों की पर्सनैलिटी में क्या कहा तुमने? बेटा मुझे कौन सी बाइक चाहिए? वो मुझे ना R15 चाहिए। हाँ? अरे क्या कर रही हो स्वीटी, एक मिनट मेरी बात सुनो। अगर ये इतनी भारी बाइक चलाओगे आगे चल के कुछ गिर गया कुछ हो गया तुम तो हम ही को दोष होगी। तुम्हारा दिमाग तो पापा अगर मुझे बाइक नहीं मिला हार्दिक फिल्म। अरे क्या क्या करे सर आप? हाँ? तेजाब दे रहे मेरे बच्चे को। सॉरी सर। हाँ अच्छा इधर सुनो, तुमको कौन सी बाइक पसंद है? R15 पापा। R1? हाँ। वाह। अच्छा सर दिखाइए कौन सी बाइक पसंद है? R15 सर ले जाइए घर। मम्मी कैसा लगा? बिल्कुल एकदम सुंदर मेरी तरह। हाँ सुंदर लग रहा है बिल्कुल तुम्हारी तरह नहीं? चलो इधर आओ। सर ये इसका कोटेशन वगैरह देके जल्दी फाइनल दीजिए। जी चलिए सर। अच्छा आगे। यहाँ है सर। हाँ स्वीटी इधर आओ, तुम इधर आओ। है? स्वीटी ये लो चाबी। और हाँ जो मैंने तुम्हें समझाया है ठीक से इसे भी समझा दो। अगर एक भी कंप्लेन आई तो बाइक के साथ तुम्हारे लादने को भी भेज दूंगा। पापा ना दिखाओ तो। अरे चुप। हाँ। फिर से आइएगा सर। ये जो मैंने बाइक दिलाई है ना, ये मैंने तेरे लिए नहीं दिलाई। ये मुझे मार्केट जाने के लिए दिलाई है। और तुझे भी इसलिए कह रही हूँ, आप तू सही सलामत घर जाइए। और तो और वो जो अपने आवारा दोस्तों के साथ तू आवारा गलती करता है ना, ओवर स्पीडिंग जो करता है, अगर मैंने वो देख लिया तुझे बेच दूंगी बाइक के साथ। स्मार्ट बॉय। पंकज बाहर निकल। ओ भाई अंकित, ओ यार 15। ओ भाई भाई साहब, भाई से एक राइट दे ले यार। खानदान में पहली बार देखे ना किसी ने भाई। भाई यार एक घर बसा निकाल कर चुपचाप है। हां भाई अब तो लाड साहब बड़े हो गए ना। R15 जो ले ली। चले। ओ भाई ये तो छत में आ गया मैं। भाई कैसे है? चले। हां चल भाई लेकिन सुन। हां इज्जत से चलाना, आराम से चलाना, ठीक है? चल ये बाइक मैंने आराम से चलाने के लिए साफ बना दूंगा। कंट्रोल उदय कंट्रोल। चले चल। रिया को कॉल लगा है, उसको बुला। हेलो रिया। हाँ बोल। बाहर निकल। अरे बस 2 मिनट में रेडी हो गई थी। आई और भाई हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। नई बाइक ले ली, तुझे कैसे मम्मी पापा ने दिला दी? वो बस हार्दिक का नाम दिया था। ये देख हार्दिक का नाम। चल अभी ऐसा छोड़, मुझे राइड दे दे चल। बैठ जल्दी। भाई ट्रिपलिंग में मैं नहीं बैठा। अरे यार तू क्या कर रहा है? मेरा भाई ना बहुत बढ़िया गाड़ी चलाता है यार। लड़की हो नखरे तू कर। हाँ। बेटा साहब तो मेरी चाहिए ना यार। अबे चल बैठ। अरे तू ऐसा करना, मोड़ बना दे। मोड़ ना मेरे साथ से बना दो। सर के साथ जॉगिंग भी कर लेते हैं। ये देख भाई मेरा दोस्त है और ये इसने नई गाड़ी ली है और हम चलते हैं। अंकित दोनों हाथ से चला। अंकित दोनों हाथ से पकड़ के चला। अंकित क्या कर रहा है? अंकित अरे भाई चल दे, कहीं छोड़ दे। मेरे को भी मामा होना चाहिए ना, मुझे घर से निकाल दे। अरे मर रहेंगे। अरे तू छोड़ अरे ना। तो पत्थर से घर वालों को बता दो दे। यार तू छोड़ मेरे को। पागल है क्या? आप बता दीजिए। जी हाँ सड़कें सफर के लिए होती है, लेकिन कुछ बेवकूफ इन्हें अपना खेल का मैदान या फिर स्टंट वाले का अड्डा समझ लेते हैं। देखिए आप सभी से अनुरोध है कृपया करके ट्रिपलिंग ना किया करें।
दो पहियों पे तीन जाने यानी कि ट्रिपलिंग करना, इससे बाइक का बैलेंस बिगड़ता है और ब्रेक्स भी आपके कंट्रोल में नहीं रहता। तो कृपया करके अनुरोध है कृपया करके ट्रिपलिंग ना किया करें। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, कुछ लोग तो महानुभाव हमारे एज ग्रुप के लोग सोशल मीडिया पे कूल बनने के चक्कर में रील्स बनाते स्टंटबाजी करते हुए, देखिए ये आपको पल भर की खुशी जरूर दे सकता है, लेकिन याद रखिए इसका जुर्माना आपको जिंदगी भर के लिए चुकाना पड़ेगा। और हाँ, एक और बात, अगर ये पॉइंट मैंने नहीं बोला तो इतने सारे जो दृश्य हमने दिखाए हैं इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। दोस्तों, सभी से अनुरोध है, हो सकता है बातें थोड़ी बचकानी लगे, लेकिन इसका मुद्दा बहुत बड़ा है। कृपया करके अपने दोस्तों का चयन बिल्कुल ही समझदारी से करें। वैसे दोस्तों का चयन बिल्कुल भी ना करें जो आपको घटनास्थल पे छोड़ के ही चला जाए। वैसे दोस्तों का चयन करें जो आपको सही सलाह और सही राय दे। तो चलिए आइए इस बात को और अच्छे समझने के लिए चलते हैं नाटक के अगले दृश्य की ओर। इसीलिए कहते हैं मेरी प्यारी बिंदु, ओ मेरी भोली बिंदु, ओ मेरी बिंदु बिंदु, मेरी उस्ताद, हाँ, गाड़ी तैयार है। गाड़ी तैयार है? हाँ। अच्छा सुनो, एक ड्राइवर हवा में चेक कर लो, चलना है बहुत दूर है। सब चेक कर दिया उस्ताद। वाह, सब बेस्ट है। और पता है आज कहाँ जा रहे हैं? हाँ, आज हम जा रहे हैं हिमाचल। क्या बात है उस्ताद, मैंने तो 5 दिन के कपड़े भी रख लिए। हाँ, यही तो तुमसे कहने वाला था कि 1-2 दिन के कपड़े भी रख लो, लेकिन तुम तो बहुत समझदार हो रहे हो। 5 दिन के रखे हैं। अच्छा चलो तो चलते हैं। चलते हैं। हाँ उस्ताद, हाँ, आज गाड़ी में चला। फिर वही बात, सब फिर से तू गाड़ी चलाएगा हैं? और हाँ, वो देखा है क्या कहते हैं ऊपर जो प्लेन उड़ती है तो उसमें जो पायलट बैठा रहता है तो क्या वो क्या कहते हैं लड़की को? एयर होस्टेस। हाँ, वो प्लेन उड़ाती है। तो फिर तू कैसे चलाएगा गाड़ी? और हाँ, कहाँ चला? गाने चलाने से पहले उस्ताद हाँ, खैनी खाइएगा। नहीं खाने वाली। उस्ताद चलाए? हाँ, ओ मैं निकला, ओ गड्डी ले। ओ मैं निकला, ओ गड्डी ले। भूख लगी है। हाँ, मुझे भी भूख लगी है। रास्ते में लगाएंगे कहीं साइड में? आज लगाओ ना। अच्छा ठीक है, चलो उधर लगा देते हैं। हाँ, चल चल। उस्ताद, हाँ, ट्रक को पार्किंग में लगा दो। फिर उस बात को समझा रहे थे। उस्ताद 20 रोड पे है। तो चल छोटू बोलो, खाना मंगाओ। ठीक है। छोटू, छोटू, साहब, भाई ऐसा कर, 4 पराठे पूरी के और 2 उस्ताद के आलू के। हाँ, सलाम साहब मेरे लिए। उस्ताद गला खिलाओ। लिखे तो लंबा लंबा ले आओ। जल्दी जल्दी जल्दी। अरे मेरा पार्टी जाना है मुझे ऐसे भी, और मैं रेडी भी नहीं हुई हूँ। मेरी बेटी पता नहीं कहाँ मस्ती कर रही है। मम्मी क्या कर रही हो? बेटा रेडी हो रही है, पार्टी में जाना। ऐसा पार्टी? हाँ, पार्टी में जाना। ऐसे कर, ये फ्रॉक पहन ले, ना तो मैं भी रेडी जाती। साड़ी वाड़ी तो पहन ले, अच्छा भी तो दिखता है यार। मम्मी कितना लेट आ रही हो? चलो जल्दी। जब देखो मस्ती करती रहती है। रुक जा जल्दी, तुम्हारा टाइम भी खत्म होता है। अच्छा बैठ, वेरी बैठ, शांति से बैठी हो ना, दिमाग मत खराब करो। ये क्या? ये है बेटा सीट है, ये ले लगा, ठीक है? लेकिन तुमने क्यों लगा मम्मी? देख रहे मेरी साड़ी खराब हो जाएगी। जब देखो मेरे से बोलती रहती है। ऐसा कर, फोन निकाल और ये मुझे गाड़ी चला दे और मैं आप भी लगा देते। पहुंचना भी तो है। मम्मी कब तक पहुंचेंगे? जल्दी चलो ना, मुझे गोलगप्पे खाने हैं। अरे बेटा थोड़ा तो सब्र कर, पास में थोड़ी है, अभी पहुंच जाएंगे। मम्मी आ जल्दी ले लो मम्मी। ये देखते हैं ना, चक्कर में मैंने रॉन्ग यू टर्न ले लिया। अब देखते को तो दोबारा घुमा के जाना पड़ेगा। तू शांत बैठ के रह। तुम गाने तो बजा दो। अच्छा ठीक है, बजाते चल। एक छोटा हाथी घूमने गया। हाँ ठीक है बेटा, तू गाती है। चल यू टर्न लेने दे। उस्ताद, हाँ चले? हाँ, चलते हैं। उस्ताद, गाड़ी अब मैं चलाऊंगा। तू चलाएगा? हाँ। अरे तो चला, क्या दिक्कत है? क्या बात है उस्ताद? प्लीज सारे दारू छोटी पी है। बेटा चल उस्ताद, दारू को बांटने की चीज है उस्ताद। देखा है तुमने सही से?
उस्ताद मुझे तो सब दिखाई दे रहा है। उस्ताद पहले के आगे तो पीछे डरता है। इधर आ। नहीं उस्ताद आप मजाक कर रहे हैं। चल चला जा। चला जाए। हाँ उस्ताद हाँ वो क्या कह रहा था तू हेमा मालिनी के बारे में थोड़ी देर पहले बात कर रहा था। अच्छी तो मुझे अच्छा मैं क्यों इस तरह उस्ताद नशा हो गया है। हाँ चले उस्ताद गाना चलाओ ना। हाँ गाना जा ये ले और दिल वालों दिल मेरा सुनने को बेकरार है। नहीं चुप क्यों सर? याद आ जाती है हाँ ए उस्ताद गाड़ी 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 सामने सारी आराम से हाँ आराम से बहुत दूर अरे नहीं बहुत दूर नहीं है लेकिन ध्यान से चलो उस्ताद आप गाने के अरे आराम से चलो मम्मी मम्मी उठो ना मम्मी मम्मी उठो ना मम्मी मम्मी उठो ना मम्मी क्यों उस्ताद मम्मी आज गाड़ी मैं चलाऊंगा सीट बेल्ट नहीं लगाती साड़ी खराब हो जाएगा अरे गलत लेन में ले ही लेते हैं जल्दी पहुंच जाएंगे और गाड़ी तेरा भाई ही चलाएगा और गाना भी तेरा भाई ही बजाएगा। इतने कैजुअली बोल देते हैं ना हम ये सब लेकिन कभी कभी यही कैजुअल चीज हमसे हमारा सब कुछ छीन सकता है जैसे वो महिला अगर वो अपनी साड़ी ना बचाने के लिए सीट बेल्ट लगा लेती तो शायद एक बच्ची अपनी मां को ना खोती और वही वो ट्रक ड्राइवर अगर आज ड्रिंक एंड ड्राइव ना करता तो शायद उससे घर का इकलौता कमाने वाला भी आज बच जाता जी हाँ इसीलिए कहते हैं कि कुछ काम की बातें ही जानकारी की और जी हाँ ये नुक्कड़ नाटक आप सभी लोगों के बीच में रिहर्सल लेके आए थे ताकि साथ ही साथ आप सभी लोगों का मनोरंजन हो सके और आप सभी लोगों को इस नाटक के माध्यम से कुछ बातें फिर से बता सके ये बातें सभी लोगों को पता होती है कि रेड लाइट पर रुकना है सर पर हेलमेट जरूर लगाना है ओवर स्पीडिंग नहीं करनी है सीट बेल्ट जरूर लगानी है लेकिन नियमों को मानता कोई भी नहीं है तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि सड़क सुरक्षा के सभी नियमों का पालन करें और जब भी कभी भी आप सभी लोग एक्सीडेंट देखें तो उस व्यक्ति की हेल्प जरूर करें क्योंकि कहा जाता है कि 1 घंटे के अंदर में गोल्डन आवर माना जाता है अगर आप सभी लोग उसकी हेल्प करते हैं मदद करते हैं उसे अस्पताल तक लेके जाते हैं तो उस आदमी की जान को बचाया जा सकता है तो आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है एक एक्सरसाइज करेंगे हम लोग और एक एक्सरसाइज के माध्यम से आप सभी लोगों को समझाएंगे तो आप सभी लोग अपने दोनों हाथ ऊपर करेंगे जैसे जागरण में रखते हैं ताली नहीं बजानी अब एक हाथ से सर्कल बनाना है सभी लोगों को सर्कल और दूसरे हाथ से ट्रायंगल दोनों काम एक साथ करने हैं और जिसका बन जाए उसको अच्छा खासा गिफ्ट मिल सकता है यहाँ पे सब लोग करें सब लोग किसी का बना किसी का आपका बन गया बनाइए बनाइए दोनों हाथों से एक साथ नहीं हुआ किसी का भी बनेगा शायद ये एक्सरसाइज ये बताता है कि दोनों हाथों से 2 काम नहीं हो सकते हैं जब भी आप ड्राइविंग करते हैं तो कॉल पर बात नहीं कर सकते हैं दूसरे काम नहीं कर सकते हैं तो आप सभी लोग ड्राइविंग करते समय मोबाइल फोन का यूज ना करें थैंक यू सो मच आप सभी लोगों ने मना कर दिया What an amazing performance. Thank you, Team Awaz, for reminding us that awareness is the first step towards transformation. From awareness, we now move to actionable learning. We are deeply honored to have with us ACP Anil Kumar Sir of the Delhi Traffic Police, along with their expert team, SI Manoj Verma and SI Veena Ma'am. With years of experience, they carry stories, insights, and lessons that can save countless lives. Please welcome ACP Anil Kumar Sir and their team with a huge round of applause.
Good morning to all of you. Respected Huda Sahab, members from Rotary Club, faculty members, professors and dear students. अभी नुक्कड़ नाटक के जरिए जो हमारी टीम ने आप लोगों को बताया, पता सबको है, लेकिन हम उसको फॉलो नहीं करते हैं। आज मैं आपको रोड सेफ्टी के बारे में कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। सो प्लीज़ उनको फॉलो करें और अपनी जान तो आप बचाएंगे ही, जो दूसरे रोड यूज़र्स हैं उनकी भी आप जान को बचाएंगे। आप कभी भी टू व्हीलर यूज़ करते हैं, हेलमेट नहीं, हम अमूमन देखा होगा हेलमेट नहीं लगाएंगे। हेलमेट लगाएंगे तो वो यहाँ तक लगा देंगे, अच्छे से उसको स्ट्रिप नहीं करते हैं। स्ट्रिप उसको करें, जैसा भी नुक्कड़ नाटक में बताया कि हेलमेट आप सिर्फ इसलिए ना लगाएं कि आपको सिर्फ चालान बचाने के लिए हेलमेट लगाना है, नहीं। आपकी लाइफ बहुत प्रीशियस है, आप उसको बचाने के लिए हेलमेट का यूज़ करें। आप अपनी फैमिली के लिए बहुत प्रीशियस हैं, सो हेलमेट का यूज़ करें। गाड़ी चलाएं तो सीट बेल्ट का ज़रूर यूज़ करें। सीट बेल्ट की वजह से आपने अभी देखा, इन्होंने नुक्कड़ नाटक टीम ने बताया कि किस तरह एक्सीडेंट्स होते हैं। सो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जब हम रोड पर चलते हैं तो इनको फॉलो करना चाहिए। दूसरा, मैंने देखा है अधिकतर सड़कों पर यूथ्स को कि जब बाइक पर जाएंगे तो ईयरफोन लगा लेते हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं। वो बहुत गलत है। आप अपनी जान तो जोखिम में डालते ही हैं, दूसरों की भी जान को भी जोखिम में डालते हैं। ओवर स्पीडिंग करते हैं, ट्रिपल राइडिंग करते हैं, हम लोग नहीं करना चाहिए। हम, आपने देखा होगा आपके ब्रदर्स, सिस्टर्स या रिलेटिव्स, कोई ना कोई अधिकतर फॉरेन में पढ़ रहा है, वहाँ का हम एग्जाम्पल देते हैं कि सब बहुत कायदे से चल रहे हैं, बहुत रूल फॉलो करते हैं, लेकिन हम अपने यहाँ बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते हैं। सीट बेल्ट है, सीट बेल्ट लगाने से हमारी ही तो सुरक्षा होगी, और हम यहाँ पर सीट बेल्ट मतलब फोर्सफुली लगवा रहे हैं, चालान कर रहे हैं। हमारा कोई इसमें, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का इसमें ये बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है कि चालान किया जाए या कुछ इस पे वो किया जाए। हम सिर्फ आपकी जान को बचाने की कोशिश करते हैं। जब हम बाहर के एग्जाम्पल हम बड़ी शान से देते हैं कि बाहर तो ऐसा है, सब उसमें चलते हैं, तो हम अपना एग्जाम्पल क्यों नहीं सेट कर सकते? बाहर से लोग आते हैं, वो भी तो हमारे यहाँ के ट्रैफिक को देखते होंगे कि किस तरह लोग जो हैं ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करते हैं, तो हमारा तो मजाक उड़ाते होंगे ना बाहर जा कर के, और हम लोग उनकी मिसालें देते हैं। तो प्लीज़ हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें भी एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए ताकि लोग बाहर जाके हमारे बारे में भी कहें कि हाँ, हम दिल्ली में गए थे और वहाँ पर सभी जो है देखो कितने अच्छे से रूल को फॉलो कर रहे थे। मोदी जी का सपना है और हम सबका ही सपना है कि भारत को विश्व गुरु बनाना है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें बाहर के लोग आएंगे या वो देखेंगे हमें, तो तभी तो हम, और आप यूथ हैं, आज का भारत है, कल का भारत आप हैं। तो ये सब चीज़ें बाहर, यही तो सब बताएंगे कि बाहर वहाँ जा करके कि भाई हमने इस तरह देखा। इवन जो बच्चे हैं वो भी बहुत अच्छे से ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो सीट बेल्ट, एक दो को पूछा कि भाई सीट बेल्ट,
बड़ी शान से बोलते हैं कि सीट बेल्ट हमने तो आज तक नहीं लगाई। अरे क्यों नहीं लगाई भाई? सीट बेल्ट ना लगाना ये कोई फक्र की बात थोड़ी ना है कि नहीं लगा रहे जी हम तो सीट बेल्ट, हेलमेट नहीं पहनेंगे जी। हमारी पुलिस टीम जो सड़क पर होती है वो आपने देखा होगा, रोक लेते हैं विदाउट हेलमेट। हम सभी का क्या आंसर होता है? बस सर मैं तो यहीं तक जा रहा था। वो यहीं तक पता नहीं कितनी दूर तक होता है। तो प्लीज ऐसा ना करें। और आपके आसपास जो भी रह रहे हैं, नीबर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको मोटिवेट करें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने के लिए। 2024 में टोटल 77% जो डेथ और इंजरीज हुई वो सिर्फ टू व्हीलर्स और पेडेस्ट्रियन की हुई। रेड लाइट पर खड़े हैं, हम देखेंगे तो उस तरफ से कोई ट्रैफिक नहीं आ रहा तो निकालने की कोशिश करते हैं। हैव ए पेशेंस रखें थोड़ा सा। आप ये देखिए कि अगर हम भी रेड लाइट को पार कर रहे हैं, दूसरा भी कोई सोच रहा है कि कोई नहीं है चलो निकाल लेते हैं, तो क्या होगा? एक्सीडेंट होने के चांस होंगे ना। और सबसे ज्यादा पेडेस्ट्रियन जो यहां पर होते हैं, पेडेस्ट्रियन को रास्ता दें पहले, उसका हक पहले बनता है सड़क पर चलने का। पेडेस्ट्रियन आ रहा है, हम फिर भी अपनी बाइक निकाल रहे हैं, हम अपनी गाड़ी निकाल रहे हैं, उसको पहले निकालने दें। पेशेंस रखें थोड़ा सा। दूसरा, हमने रेड लाइट वायलेशन डिटेक्शन कैमराज लगाए हुए हैं, ओवर स्पीड वायलेशन डिटेक्शन कैमराज लगाए हुए हैं, सड़कों पर लगे हैं, और उनसे पहले वार्निंग साइंस भी लगे हुए हैं। ये सब आपकी लाइफ बचाने के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए है। कोई ओवर स्पीड कर रहा है या कुछ, ये कोई इसमें शान की बात बिल्कुल भी ना समझें प्लीज। अभी 234 कैमराज हमारे दिल्ली में लगे हुए हैं और 125 कैमराज हम और लगाने जा रहे हैं जल्द ही, बाय एंड ऑफ नवंबर 25। हम सिर्फ दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का ये एम है कि हमें जबरदस्ती किसी का फोर्सफुली ये सब एग्जीक्यूट ना कराना पड़े कि भाई आप वो लगाएं, बेल्ट लगाएं, हेलमेट लगाएं, रेड लाइट जंप ना करें। ये हमारी लाइफ के लिए है। अभी आप नुक्कड़ नाटक में बताया कि जैसे कोई किसी के एक्सीडेंट हो जाता है तो आपने देखा कि उसमें पूरी फैमिली किस तरह डिस्टर्ब हो जाती है। आप लोग अभी यंग हैं, मैं और हुडा साहब अभी यही बात कर रहे थे कि पेरेंट्स को कितनी तकलीफ होती है। आप कल का भारत हैं, आप एग्जाम्पल सेट कीजिए कि हाँ बाहर का भी कोई आदमी आएगा तो हम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करेंगे। एक हॉर्न के बारे में बताऊंगा मैं। अननेसेसरी हॉर्न ना बजाएं। कई देखा होगा पीछे से आ रहे हैं, ईयरफोन लगाए हुए हैं, म्यूजिक चल रहा है, हॉर्न बजाते हुए निकल रहे हैं अननेसेसरी। दूसरों को परेशानी होती है इससे। और अननेसेसरी हॉर्न बजाना क्यों? एक हमारा एक वोका ऐप है, उससे हम चालान करते हैं। शायद आप लोगों को, कम लोगों को पता होगा कि ऐसी नौबत ना आने दें। आपको पता भी नहीं लगेगा और आपका चालान कट जाएगा। दूसरा, मैं टेक्नोलॉजी के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि जैसे RLV ई चालान्स वगैरह हैं, और एक हमारा सेंटिनल ऐप है।
किसी को पता है सेंटिनल ऐप के बारे में? एनीवन? एक सेंटिनल ऐप है दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का, उससे आप जुड़ सकते हैं। कहीं भी आप अपने आसपास या इधर उधर कुछ भी वायोलेशन होते देखें तो उसको कैप्चर करें। कैप्चर करके आप हमें भेजें, हम उसको चालान में कन्वर्ट करेंगे। इसमें आप समाज को कितना सहयोग करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़िए, हमें अच्छा लगेगा। और ट्रैफिक रूल्स की जबरदस्ती वाली बात कि जी नहीं, चालान करने के लिए तो हम सीट बेल्ट यूज कर रहे हैं, हमारी रेड लाइट पीछे निकल गई, हटा दिया हेलमेट या वो, तो इस तरह की प्लीज ना करें। और कोई ऐसा हो, यंग हैं आप, कोई सजेशन देना चाहता हो प्लीज। सर, आपने दिल्ली ट्रैफिक के बारे में काफी बताया, जैसे रेड लाइट लोग जंप करते हैं या ट्रैफिक ना आने पे क्रॉस करते हैं। दिल्ली ट्रैफिक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो नोटिस करते हैं ई-रिक्शा। मैं आपसे सजेशन पूछ रहा हूँ सर, ई-रिक्शा का सर, जो ई-रिक्शा बहुत इशू क्रिएट करते हैं, उसका कैसे सॉल्व? ई-रिक्शा का हम चालान करते हैं, हटवाते हैं। सर, उनको चालान कर सर, जितनी बार भी हमने कभी रेड लाइट पे आए हैं, कुछ सर हमेशा ई-रिक्शा वाले ही होते हैं जो रॉन्गली क्रॉस करने की कोशिश करते हैं या ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं। तो जो भी वायलेशन करेगा उसका चालान होगा। मौके पे मोस्टली होता नहीं, अभी मैंने बताया, शायद आपने सुना नहीं, कि हमारे जो है RLVD और OSVD कैमरास जगह जगह लगे हुए हैं और 125 लोकेशंस पे हम और लगा रहे हैं। एंड वो का ऐप जो बताया मैंने, उससे चालान हो जाता, पता भी नहीं लगता है। तो आप ट्रैफिक, जो मैं सेंटिनल के बारे में बता रहा हूँ, सेंटिनल ऐप के बारे में, तो आप उससे जुड़िए। आपको अगर ये इस तरह की वो लगते हैं तो आप कीजिए ना। हाँ, है आपके पास, हाँ तो कीजिए फिर आप। तो जब अगर वो करते हैं तो आप क्यों नहीं करते हो? तो फिर तो आपको कोई शिकायत ही नहीं होनी चाहिए। वो भी सर एक महीना लग जाता है। किस में? जब लास्ट अगर मैंने उसमें एक बार जब डाला था, फिर तो 4 to 5 weeks to get it up। वो नहीं, पेंडिंग में है वो। एक हमारी 24/7 एक टीम काम करती रहती है। तो वो आपका ऐसा नहीं है कि आप आज चाह रहे हैं तो आप कल ही चालान हो जाएगा। आप उससे जुड़े हुए हैं, आपने भेज दिया, दैट्स इट, आपका काम खत्म है। वो फिर आगे हमारा काम है। सो प्लीज, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, एक एग्जांपल बने और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें अपने आसपास। और जब भी 2 व्हीलर्स पे या गाड़ी में जाएं या कुछ भी, या एंड इवन रोड क्रॉस कर रहे हैं आप, तब भी आप बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, देखें आसपास। क्योंकि मिस हैपनिंग होने के बाद एक बार एक्सीडेंट हो गया या कुछ चीज़ें दोबारा नहीं आ पाती। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir, for your illuminating and thought-provoking session. Your guidance will echo in our minds every time we cross a road or sit behind the wheel. Accidents happen in moments, and in those moments, the difference between life and death is often knowledge. We are privileged to have with us Dr. Atul Vaish from the Rotary Club of Delhi Chanak, ex-HOD Department of Orthopedic, Northern Railway Central Hospital, who will now teach us life-saving skill of CPR. For this demonstration, I would like to call a student volunteer, and please welcome Dr. Atul Vaish with a huge round of applause.
Am I audible? Yeah. Good morning, everyone. Respected Director Sir and our fellow traffic personnel who are helping us in this challenge. Students, have you gone through any of these training before? Anybody raise the hand? CPR? None. This is the tragedy we are having. That, sir, you can understand if my youths are not trained for this life-saving technique, it's a big problem. So the most target, we have the target of CPR is only for the young students, college students, your school students, and those who are present on the roads, like policemen, traffic police, normal police, and your truck drivers, guards. All these are the ones who are available at the site of the accident. So this technique with what you are going to learn today is called CPR, is for cardiopulmonary resuscitation. What is that? Cardiopulmonary resuscitation. Cardio means heart, pulmonary means lungs, and the resuscitation is the technique which you need to save a life. Okay? सर ने भी कुछ स्टैटिस्टिक्स बताया, बट उसकी ग्रेविटी में आपको बताता हूँ, बिकॉज यू आर द वन हु शुड बी वेरी वेरी सेंसिटिव टू ऑल दिस स्टैटिस्टिक्स. ईयरली हमारे यहाँ ऑलमोस्ट 5 लाख केसेस होते हैं ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के, जिसमें से 1.5 lakhs आर डेथ्स. So you can see the amount of people who are dying. And it has been found that if we are trained for this technique, we can save about 30% of these deaths. Because the medical facility is not available, nobody is trained for CPR, the person is not been transported early to the hospital. तो 30% persons को हम लोग बचा सकते हैं यदि हमें ये टेक्निक आती हो. सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स इज कि एक्सीडेंट जो एज ग्रुप है, दैट इज द 70% आर बिटवीन द 18 and 45, विच इज़ द प्रोडक्टिव ईयर्स, जिसमें लोग अब तक कमा रहे होते हैं, घर चला रहे होते हैं. समटाइम्स सोल ब्रेड विनर अर्नर होता है वो, एक ही बंदा कमा रहा है, 5-6 लोग घर के लोग उसके ऊपर आश्रित है. ओके, सो 70% आर फ्रॉम दैट एज ग्रुप. और यदि हम इस 45 को 60 ले जाते हैं, जो कि हमारा रिटायरमेंट एज होता है, दिस गोज, द फिगर गोज अप टू 85%. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो व्हाट डज द CPR डज एंड किस में हमें CPR करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, दीज 2 things I just want to tell you, and you should just see and learn. Why CPR is important? Because there are 2 things. लोग समझते हैं कि हार्ट अटैक भी जो है उसमें भी हमें CPR करना है. नो, कॉमन टर्म जो हम लोग जानते हैं वो है हार्ट अटैक, कि पेशेंट पर्सन को हार्ट अटैक हो गया. बट यू मस्ट हैव सीन सो मैनी पीपल, मतलब इंक्लूडिंग आवर एक्स प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम साहब, लेक्चर ले रहे थे, ही फॉल डाउन. के सिंगिंग इन एन ऑडिटोरियम एंड ही फॉल डाउन. So sudden fall down and patient becomes unconscious, that is not heart attack. हार्ट अटैक होता है जिसमें कि आपकी आर्टरीज हार्ट की ब्लॉक हो जाए, ब्लड सर्कुलेशन हार्ट को नहीं मिले, तो हार्ट जो है उस तरीके से आपको जो है हार्ट अटैक की तरह आपको होता है. बट पेशेंट इज़ रेस्पॉन्सिव, ही इज़ कॉन्शियस. वो पर्सन जो है वो कॉन्शियस रहता है, ही इज़ नॉट अनकॉन्शियस. इफ ए पर्सन इज कॉन्शियस, ही इज़ ब्रीदिंग, then that fellow does not require CPR. So heart attack usually don't require any CPR. They need early mobilization to the hospital. उसको as early as possible आप उसे hospital पहुंचाने की कोशिश करें. Second condition is cardiac arrest. Now the cardiac arrest is not because of the blood circulation. हमारे हार्ट में जो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन होता है, यदि वो डिस्टर्ब हो जाए सडनली, उसमें जो है हमारा जो भी उसका इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, एट्रियल फिब्रिलेशन, ये टेक्निकल वर्ड्स हैं, सडन हमारा हार्ट बंद हो जाता है, इट स्टॉप्स वर्किंग. वंस इट स्टॉप्स वर्किंग, द पर्सन विल फॉल डाउन. नाउ दिस फेलो इज अनरेस्पॉन्सिव, ये रेस्पॉन्स नहीं करेगा. दिस इज द फेलो वेयर सिस्टमेटिकली एग्जामिनेशन बाय यू
whether he requires CPR or not, this we will be learning today. Okay, so there are two things. How it helps: once we compress the chest, we are stimulating the heart to compress, so that the blood goes to the brain, which is a vital organ. So always remember that the clinical death, it precedes the biological death. Death जो आप देखते हो कि पर्सन रेस्पॉन्सिव नहीं है, बिल्कुल रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, वो मरा नहीं है. यदि आप उस जगह प्रेजेंट हो तो within 3 to 5 minutes if you start CPR, you can save his life, because वो गिरा इसलिए है, उसका ब्रेन को ब्लड सप्लाई खत्म हो गया है, नो ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन. तो जब आप आर्टिफिशियली उसको ब्रेन को सप्लाई देंगे, टिल द ब्रेन इज स्टिमुलेटेड विद द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ब्रेन जो है वाइटल रहेगा टिल द मेडिकल फैसिलिटी कम्स. So these two things you should remember, that CPR is very very essential between these early 3 to 5 minutes, which are also called as the golden period. Now, how to go systematically? The first thing is, whenever you find a person unresponsive, it can happen to so many reasons. किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, वो गिर सकता है. किसी कोई फायर के अंदर उसको हो गया तो वो बेहोश हो सकता है. ड्राउनिंग हो सकती है, वो बेहोश हो सकता है. These are all the people who will be requiring a CPR to revive his heart. Okay, so the first thing you have to remember is, point wise you will remember. First is safety. Safety is for yourself, safety is for that person. आप सड़क के बीच में एक्सीडेंट हुआ है, आप वहीं CPR नहीं कर सकते, क्योंकि कोई और गाड़ी आएगी, आपको भी कहीं इलेक्ट्रिक का वो है, पहले आपको दूर ले जाना पड़ेगा उसे. ओके, सो द सेकंड थिंग इज दैट यू नीड हेल्प. और हेल्प की हमारे इंडिया में कोई कमी नहीं, वीडियो बनाने वाले सारे आ जाते हैं इमीडिएट, है ना. जैसे आप कोई गिरा, उसके बाद आप भीड़ लग जाएगी उसके चारों तरफ. तो यू विल नीड हेल्प, तो यू कैन हैव हेल्प एट योर. तो हेल्प से आप क्या करेंगे? सबसे पहले उसको आप बोलेंगे कि प्लीज कॉल एन एम्बुलेंस. तो एम्बुलेंस का आपको नंबर याद होना चाहिए. What number the government has given us? Anybody? Number ambulance के लिए. Any student? Raise your hand. For ambulance. 102. Yes. 102 is one, but government has also given 112, which is common for all the services like fire, for the police, for the accident. Okay. So these numbers has to, so person should know कि कहाँ कॉल करना है, उसके बगैर आप कॉल कैसे करेंगे. And you have to give some information. एक तो साइट बताना पड़ेगा उसको कि कहाँ पर है, बेटा कहना है वाटर, कहाँ पर वो है जगह आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. कुछ उसको लैंडमार्क देना पड़ेगा सो दैट ही रीचेस फास्ट. सेकेंड, आपको ये बताना पड़ेगा कि उसमें कितने कैजुअलिटीज़ हैं, कितने आप उसमें कितने लोग हैं, एडल्ट्स कितने हैं, बच्चे कितने हैं, मेल कितने हैं, फीमेल कितने, सो दैट द एम्बुलेंस कम्स लोडेड विद ऑल द फैसिलिटीज़. सपोज उसको आपने इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो वो एम्बुलेंस जो है वो उतना उससे आएगी नहीं तैयारी से. So the first was safety. So you have to take the person from unsafe part to the safe, and it should be a flat, hard surface. किसी पलंग के ऊपर CPR नहीं दे सकते. Got? So once the person is shifted, you have, with the help you have shifted him, and somebody is calling the ambulance. The third thing is that response. So how do you see the response? A person is unresponsive, he is not breathing. I told you initially, if no breathing, then the person is unresponsive, needs CPR. Okay, if there is a breathing, don't do anything, no CPR. Okay, so the third point is that you see the response. So how do you see the response? You tap on the shoulder 3 times and ask him, कैसे हो, कैसे हो. You have to push hard. Still, if suppose you think that he is blinking, but you are not sure, this bone is the most
टेंडर पॉइंट विच सबसे ज़्यादा दर्द करने वाला पॉइंट ये होता है। तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स कई बार जब अनकॉन्शियस होता है तो इसके ऊपर ऐसे रब करके पूछते हैं। सो यू कैन पुट अ प्रेशर हेयर ऑल्सो एंड यू सी द रेस्पॉन्स। So once there is response, the person gives his name or his blinks या वो ऐसे कर देता है, nothing to be done। उसका circulation भी maintained है, heart काम कर रहा है, उसका breathing भी maintained है, ठीक है। I will tell you what after that you have to do, because there is a rescue position you have to put him till the medical emergency comes। Now the second security, the person is non-responsive, कोई response नहीं आ रहा, आपने दबाया। नाउ द टाइम मैटर्स, उसको एज अर्ली एज पॉसिबल आपको करना है। सो यू हैव टू रिमेंबर ए बी सी एंड डी। डी इज ओनली फॉर द एक्सीडेंट पार्ट, ए बी सी इज फॉर ऑल अदर emergencies like electric shock or another। So the A stands for the airway। What happens when you lie down in prone this supine position, ऐसे straight लेटते हैं तो आपका जो टंग है वो आपका एयरवे ब्लॉक कर देता है। So the airway has to be clear, then only the person will breathe। So most of the time once you clear the airway, the person starts breathing। So you have to know how that airway can be made patent, okay। तो उसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा लोअर जॉ है वो हमारी टंग से अटैच्ड होता है। So if we lift this lower jaw only, the tongue will be away from that airway and the person will start breathing, okay। So you have to, first is the airway has to be clear, second is that the B part is the breathing part। How to see that whether he is breathing or not? Put your palm on the abdomen and see whether there is any pulsations, can you feel something, because with each respiration there will be, or you can have a feel, you can 2 fingers at the nostril, or you can hear, bring your ear near the nose and you can hear the sound of the breathing। The C part, A, B and the C part is the circulation। His heart is working, you can see only with the feeling of the pulses, okay। And the best pulse is which is near to the heart is the carotid pulse, neck में जो होती है। So you just feel this, the most prominent part of the neck, apple जिसे कहते हैं, इससे just slide your 3 fingers on both sides, you will feel a depression, and in that depression if you just keep these 3 fingers you will start feeling the pulse। You can all feel it, you can feel it at the back, are you able to feel it? This is the most strongest। So once you feel it, that means his circulation is there। If he is breathing and circulation is there, nothing to be done, no CPR। This is very very important, I am repeating every time, no CPR, it is a very very painful situation। So please, no CPR। The person is unresponsive or but his breathing is there, he may have a head injury, you don't know। So if his breathing is there, his circulation is there, no CPR। And the D part is the disability, okay। Only in the accident cases, suppose किसी का फ्रैक्चर भी है सर में, या किसी का पैर हाथ कट गया है, तो there will be severe bleeding। तो 2 things has to be taken care of in an emergency। One is the bleeding part, जिसको कि हम प्रेशर बैंडेज से रोक सकते हैं, प्रेशर देके। Just give the pressure for 10 minutes, it will stop। Any biggest artery will stop if you just give 10 minutes pressure। You just see it, again give 10 minutes if you feel there is some oozing, it will stop। So one is your bleeding and second is your fractures। डिफॉर्मिटी हो सकती है, हाथ टूट गया, टेढ़ा हो गया, पैर टूट गया, टेढ़ा हो गया, जिस पोजीशन में है उसको उसी पोजीशन में शिफ्ट करना है पेशेंट को। प्लीज़ डोंट ट्राई टू रिड्यूस इट और करेक्ट इट। कोई हड्डी बाहर निकले उसे का अंदर घुसा देते हैं, एक टेम्पटेशन सी होती है कि हॉस्पिटल जाने से पहले थोड़ा सीधा पैर हो जाए हाथ। नो प्लीज़, बिकॉज एक बार किसी भी बोन को एयर लग गई तो वो इन्फेक्टेड हो गया। यू गॉट इट। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस पोजीशन में आपको मिला है पैर और हाथ, उसको उसी में स्प्लिंट करना है।
जो भी चीज़ आपको मिल सकती है, इवन अखबार को भी आप बना के, एक स्प्लिंट बना के और अपने रुमाल से बांध सकते हैं. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको मार्केट वाली स्प्लिंट हो. एनीथिंग, योर फुट रूल, आपका लकड़ी वाला फुट रूल जो है वो स्प्लिंट का काम कर सकता है. कोई ट्री की ब्रांच का काम कर सकते, जो उस टाइम पे अवेलेबल है, यू कैन यूज इट एज ए स्प्लिंट. सो डिसेबिलिटी पार्ट इज ओनली फॉर द एक्सीडेंट केसेस. नाउ व्हाट टू डू व्हेन यू फील दैट देयर इज नो रेस्पिरेशन एंड no heart function? Now the CPR has to be given. And CPR जो करते हैं हम लोग वो बड़ा सिस्टमेटिक होता है. इट इज़ टाइम हैज़ टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप उसको ये नहीं कि काफ़ी मिनट तक जो है आप उसको डिले करें, क्योंकि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ द अर्ली 3 to 5 minutes. So what to do in the CPR is that फर्स्ट उसमें हमारा ना ABCD चेंज हो जाता है CPR में. उसके अंदर हमारा CAB हो जाता है, कैब. C इज सर्कुलेशन. तो सबसे पहले हमारा कार्डियक का जो कंप्रेशन है, C स्टैंड्स फॉर कंप्रेशन. तो हम जो है, आपका जो डोमिनेंट हेड है, कोई राइट हैंडर होते हैं, कोई लेफ्ट हैंडर होते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड हील ऑफ द पाम. ओके, सो यू जस्ट लॉक योर फिंगर्स and with this heel of the palm, keep it, you just feel the chest bone and you will feel a depression here. 2 fingers above, just at the level of the nipples, you have to put your palm and you lock your fingers. Am I clear? You see this? And you have to sit near to the person, keep your elbow straight, and the shoulder should be in the line. It should be not here or anywhere here. It should be in the line. And the pressure or compression has to be by the body, not by your hand. Okay? The whole body. Because यदि आपने हाथ से दिया, आपका हाथ थोड़ी देर में ही दर्द करने लगेगा. But if whole body weight is required for the pressure, then you can do the pressure. See this pressure. Okay. Now how much pressure? It has to be 5 centimeter deep, 2 to 2.5 inches. Okay, the depth, the pressure has to be this. Then only the heart will be compressed. And how much? 100 to 120 times per minute. That should be the rate of your compression. See this? Simple. By your body, you have to do it. So how many sets you have to do? Is the 5 sets. 30 each. 30 time compression, and then there are 2 rescue breaths we have to give. We say that if you don't want to give the rescue breath, it is okay. But suppose a family member is there, your father is there, or your mother is there, or your brother is there, then you might like to add that. So you should know how to give the rescue breaths. And the ratio is that after every 30 compressions, 2 rescue breaths has to be given. And each rescue breath should be only 1 second. Means in 2 seconds you have to complete that. And how to give it? First you have to clear the airway by pulling the lower jaw, which I said. Then you open your mouth by putting 2 thumbs on the chin. Okay. And somebody has to pinch the nose of the person. Once the mouth is open, the nose is pinched, you take a deep breath, full deep breath, lock your mouth with the mouth of the person and just exhale. उसी के अंदर आपने जो deep breath लिया है, एक ही उसमें आपको पूरा का पूरा breath उसके मुंह में छोड़ना है. And effectiveness है या नहीं है, that you can only see if with every breath the chest should rise. Chest उठनी चाहिए. If that is being done, that means you are doing the correct way. So only 2 times. You just have to lift the chin, close this, open the mouth, lock your mouth. There should be no leakage, and exhale your breath in the mouth, and the chest should rise. So this is the correct way of doing 32. So 5 sets. Every 5 sets you have to see now. And this procedure, the 5 times compression of 30 each and 2 breaths 5 times should be completed in 2 minutes.
Okay, your target should be within 2 minutes. This should be done, and then you again see for the breath and the rest for the pulse. If the pulse is restored, यदि उसको वापस सांस आने लगता है, पल्स रेस्टोर हो जाता है या वो रेस्पॉन्स करने लगता है, just stop the CPR and you keep on doing that. Take the help of your bystanders जो आपके संग खड़े हैं, उन्होंने आपको देख लिया है करते हुए. इसमें कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है. It is not for medical person. This CPR is for non-medical and medical both. Everyone should learn, irrespective whether he is a biology student or not, whether he is a medical student or not. ये procedure हर एक के लिए ज़रूरी है, which is now a training we are giving is the BLS, is the basic लाइफ सपोर्ट ट्रेनिंग. ओके, तो BLS कोर्स जब भी आपको मौका मिले प्लीज़ डू इट. इट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल. मेनली उसमें CPR ही है, बट अदर लाइफ सेविंग प्रोसीजर्स भी हम BLS में सिखाते हैं. सो दिस इज़ द ओनली थिंग विच आई वॉन्टेड टू टेल यू दैट हाउ टू डू द CPR. वंस द पर्सन इज रेस्पॉन्सिव, then I just wanted to teach you was the rescue position. Never keep patient in this position. Why? बिकॉज जो मुंह के सिक्रीशंस होते हैं वो हमारे लंग्स में चले जाएंगे, चोकिंग हो जाएगी उसको, ही में डाई बिकॉज ऑफ दैट. ओके, सो इसमें हमारा एक रेस्क्यू पोजीशन होता है जिसमें हम जो इसका मेरी तरफ जो हाथ है उस हाथ को हम 90 डिग्री पे बेंड कर देते हैं, कीपिंग द हाथ को ऊपर की तरफ रख के हम उसको 90 डिग्री पे बेंड कर देते हैं. ओके, और ये वाला जो हाथ है उसको हम एल्बो से पकड़ते हैं और इधर हम जो इधर वाला पैर है अपोजिट साइड वाला उसको हम नी से पकड़ लेते हैं बेंड करके उसको. ये वाला पैर तो स्ट्रेट है, एंड देन वी शिफ्ट द पर्सन इन द लेटरल पोजीशन, साइड पोजीशन. और जो ये वाला हाथ है इसको फिर हम इसके सिर के नीचे रख देते हैं. ये बेंड रहेगा ऊपर वाला नी, ये स्ट्रेट रहेगा. इन दिस पोजीशन द पर्सन हैज टू बी in a rescue position till the medical facility comes. This is very very important. कभी भी कोई इमरजेंसी आपको लगे और पेशेंट अनकॉन्शियस हो, आप कुछ करना भी नहीं चाहते, उसको इससे ही आप सेव कर देंगे, क्योंकि इस पोजीशन में 2 एडवांटेज हैं. 1, इसका एयरवे हमेशा खुला रहेगा, विच इज़ द मोटो हमारा कि एयरवे खुला रहे जिससे वो सांस लेता रहे. और सेकंड, उसके मुंह में कोई भी सिक्रीशंस होते हैं, कुछ भी होता है, वो उसके साइड से निकल जाएगा. इट विल नॉट गो इनटू द लंग्स, जो कि लेटर ऑन कई पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो CPR करके बचा तो लिया बट लंग इन्फेक्शन की वजह से उनकी डेथ हो जाती है, बिकॉज एस्पिरेशन हो जाता है. सो दीज 2 थिंग्स यू हैव टू लर्न. बस एक आयरनी है हमारे देश में कि हमारे जो है ना ये पिज़्ज़ा बर्गर आ जाता है 30 मिनट में और हमारी ब्लिंकिट आ जाती है 10 मिनट में, लेकिन एम्बुलेंस नहीं आ पाती है. कोई ऐसा सिस्टम हम बना दें कि बस हम फ़ोन करें और 5 मिनट में 3, क्योंकि बाहर आपने देखा होगा जितने भी डेवलप कंट्रीज़ हैं, हमारी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ का रिस्पॉन्स टाइम इज़ 3 to 5. यदि वहाँ की टीम नहीं पहुँचेगी उस 3 to 5 रिस्पॉन्स टीम में तो एक्शन हो जाता है, लोग स्यू कर देते हैं. बट हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली सर भी जानते हैं कि ट्रैफिक कितना है कि एम्बुलेंस को ही ट्रैफिक नहीं देते हैं. वो कॉरिडोर बनाते हैं तो जैसे ही वो कॉरिडोर खाली देखते हैं लोग उसी के अंदर, या फिर जब तेज आपका वो एम्बुलेंस आगे जा रही होती है तो उसके पीछे कार लग जाती है. सो दीज थिंग्स लाइक द डिसिप्लिन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. व्हाट ही वाज आल्सो टॉकिंग वाज कि लाइफ में ना डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है. उस डिसिप्लिन में एक पार्ट हमारा रोड ट्रैफिक डिसिप्लिन भी है. थैंक यू सो मच. Thank you, sir, for empowering us with this life-saving skill. Road safety is not only about rules and signals, it's equally about our state of mind. Stress, anger, and impatience on road often turns ordinary moment into tragedies. To guide us on this critical aspect, we are honored to welcome 2 distinguished mental health experts from Deen Dayal Upadhyay Hospital, Ms. Niharika and Ms. Akshita. Please welcome them with a huge round of applause.
Good afternoon. We're very grateful for the invitation to join this lovely initiative. A very important topic of road rage. Mental health is a segment that we wish to also add in the very important things that we've discussed, because नुक्कड़ नाटक में हमने देखा होगा कि चिड़चिड़ापन, irritability, all of this is the first step to road rage, right? तो जो हम लड़ाई देखते हैं वो end result होता है, but it starts somewhere. So we want to today talk about how to control our arousal, how to control our rage, so that we don't reach to the point of road rage. So what is road rage? It's not just fights, it's not just physical fights. We also have terms such as tailgating. Has anyone heard of tailgating? What is tailgating? किसी ने कार्स मूवी देखी है जिसमें बहुत ही पास लाके गाड़ी को साथ साथ चलाते हैं, है ना? दिल्ली में लॉट ऑफ पीपल ट्राई एंड रेस विद डिफरेंट कार्स, बहुत पास लाके चलाते हैं और बीप करते रहेंगे, हॉन्क करते रहेंगे टू मेक दैट अ गेम. That also is a form of road rage. Verbal abuse, assault, irritability, ये सब road rage के forms हैं. We'll see a movie clip of how road rage starts, what physical sensations do we feel when these incidents are happening, and then learn how to control them. Stupid fucking bitch! You're fucking mine. Yeah, here, I wish you would have fucking left the house. Okay, so this is just a clip to give us an experience of how it starts, how someone gets irritated, how someone responds, and how it eventually ends, right? So there are different stages in this also. मतलब पहले अगर हम ये समझें कि हमारा अराउजल होता कैसे है, अगर हम जंगल की बात करते हैं, अगर कोई शेर आ जाता है हमारे सामने तो हमारा हार्ट रेट तेज़ होता है, ब्रेथलेसनेस आ जाती है, एंड दीज आर साइंस जब हम रोड पे होते हैं, हमें घबराहट हो रही है या हमें गुस्सा आ रहा है. दिस इज़ द फर्स्ट साइन दैट वी नीड टू acknowledge कि हम अभी डिस्ट्रेस में आ रहे हैं. This is the arousal stage. If we don't manage our anxiety or anger at this stage, it reaches resistance stage and then exhaustion stage. So we take an action in the third stage. पर अगर हम पहले ही उसको कंट्रोल कर लें तो हम वहाँ पे नहीं पहुँचेंगे. So our emotions affect driving, and that is what we want to target today. We will see that traffic and the road incidents are not in our control. What is in our control is our response, how we've learned through CPR or medical interventions, or our own mental health response to such सिनेरियोज. तो अगर कोई हमें अब्यूज़ कर रहा है तो हम अपना रिस्पॉन्स हमारे हाथ में है, उसका रिस्पॉन्स हमारे हाथ में नहीं है. सो राइट नाउ माई कलीग अक्षिता वुड बी गाइडिंग यू थ्रू सम ऑफ द ब्रीदिंग टेक्निक्स विच आर वेरी क्विक ब्रीदिंग टेक्निक्स दैट वी कैन डू ऑन द रोड, सो दैट इफ वी आर अ विक्टिम, अ विटनेस, और वी आर इन द सीट ऑफ द परपिट्रेटर, ऑल रोल्स में हमें ये करना ज़रूरी है.
Please do this with the instructions that Akshatam will be guiding you through. It's a very quick exercise that can help you deal with anxiety on a regular basis also. Thank you, Niharika. So, when it comes to road rage, it's very important to understand that it's a natural process. जब भी हम किसी जगह पे जा रहे हैं, किसी लाइन में लगे हैं, तो जो एंजाइटी, जो रेस्टलेसनेस, जो एंग्स्ट हम फील करते हैं, वो बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है. पर जैसा कि मेरी कलीग ने समझाया कि वो स्टेजेस में होता है. पहले हमें घबराहट होगी, फिर हमें गुस्सा आएगा, फिर हम कुछ उस घबराहट का करने की कोशिश करेंगे कि नहीं, ये घबराहट नहीं होनी चाहिए, तो हम इस चीज़ से दूर कैसे भागे, और तब हम वर्बल अब्यूज़ करेंगे, तब हम किसी को मारने की कोशिश करेंगे, तब हम गाड़ियाँ तेज़ चलाएंगे, और तब हम बाकी सारी चीज़ें करेंगे. राइट? सो अभी मैं एक एक्सरसाइज सिखाऊंगी विच आई वुड वांट ऑल ऑफ यू टू जॉइन मी विथ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लोज योर आइज. I want all of you to close your eyes. Now, as I instruct, just follow my leads, okay? First, inhale for 4 seconds. Now, hold the breath for 4 seconds. Exhale through your mouth for 4 seconds. And again, hold your breath for 4 seconds. One more time. Inhale for 4 seconds. Hold for 4 seconds. Exhale for 4 seconds. And then again hold for 4 seconds. So when you do this process repeatedly, you would feel a calm in your body. As I have said that mind and body both are interconnected. तो अगर हम अपनी बॉडी को काम डाउन करेंगे, हमारा माइंड अपने आप काम डाउन हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा. एक एक्सरसाइज ये है. दूसरी एक्सरसाइज ये है कि अपना एक हाथ आप अपने पेट के ऊपर रखिए, ओके, एंड दूसरा हाथ अपने चेस्ट के ऊपर. Okay, now when you breathe in, I want you to feel your diaphragm or your abdomen to fill up. जैसे हम सांस अंदर ले रहे हैं तो हमारा पेट जैसे फूल रहा है, उसको महसूस कीजिए. सांस अंदर, होल्ड, अब सांस बाहर. ये 2-3 बार करने से हमें अपनी बॉडी में एक एहसास फील होगा कि हाँ, हमारी बॉडी अब काम डाउन है. कम से कम 2-3 बार करना पड़ता है, ये एक बार में नहीं होगा. So whenever you feel anxiety, whenever you feel there's this angst coming up, there's this restlessness coming up, you can do this exercise in like 5 minutes or so. You will be feeling a really calm essence in your body. Okay, I hope that you all benefited from this talk. Thank you all. Thank you, ma'am, for reminding us that mental well-being is a vital as traffic discipline in keeping our roads safe. And now, let's put our learning into actions with fun and interactive challenge. It's time for our road safety quiz. Everyone, please take out your phones. Please search for quiz.com. Search for quiz.com on Chrome. Please sign up with your Google ID. Once you have opened quiz.com, you need to sign up with your Google ID. Yes, ma'am. They are joining over there. Yes, ma'am.
Yes, ma'am. Everyone, please join fast. We have 15 players. We need more. Please come. They're doing. Yes, ma'am. And just to inform, our winners will also receive something truly symbolic. Steelbird helmets, a shield of safety, and a daily reminder of responsibilities. So let's see who's gonna be the champion of our safety quiz. So now once you all have joined quiz.com, you need to enter 602928 as the pin code for this quiz. There is an option for enter the pin code. Enter this number 602928. Okay, ma'am. You all can start with the quiz, please. Yes. Okay, 1 more minute and then we'll be beginning with the quiz. Last minute and we're going to start the quiz. Let's start the quiz. Yes, ma'am. Yes, ma'am, no one's. Yes, you can answer the questions. You have the question on your screen. Answer it. Yes. Okay. National Road Safety Week is celebrated in which the month? What does a broken white line on the road indicates? Here the answer will come when your time is going to get over. So don't wait. You need to be quick. Before that, you need to put your answer. Your answer won't be taken. So promptly. Next question. What does the double solid yellow line on the road mean? And you have the next question. Answer it fast. Time is about to finish. That's it. And we have the next question. What does the symbol indicate? You have multiple options. Choose fast. Time up. What is recommended while driving vehicle during night on the highway? And time's up. Next question. What does the green number plate signify? Don't prompt the answers.
The maximum imprisonment for a first-time drunk driving offence is What is the minimum age for driving a vehicle with a permanent license? Students, don't prompt the answers. What is the full form of LMV? One more. Gurveen. What does this symbol signify? We'll keep the results on hold. Now I request Professor Emin Huda, Director BVI CAM, and Deputy Director Dr. Ritika Vasan to felicitate the entire team. Please come on the stage. I also request the Awaaz group for doing a wonderful performance to come on the stage. First, we'll felicitate the Awaaz group. A huge round of applause for the Awaaz team for the wonderful performance, thought-provoking and mind-boggling. I request all the esteemed guests to please join on the stage. Sir, ma'am, I request everybody to please come on the stage. We are so honored to have you. Feels thrilling, right? But buying a cool helmet is a confident choice. Okay, students, a huge round of applause. Thank you so much. Now I request sir to felicitate our esteemed guests. Yes, please.
so much, sir. Thank you very much. A huge round of applause to sir for giving us such valuable information. We can also do it. It's okay, let me to write the names मैं वहाँ लिख के पर अभी करना है ना तो वो फोन मैम प्लीज Thank you coming from Indu ma'am for being the anchor, being the central pillar for the entire show. Huge applause to ma'am. Ma'am is giving some appreciation awards to the, please, for the traffic police man, please come. Please sir. And the mental health lecturer, please come. And now we have appreciation awards for all the volunteers from Rotary Club of Delhi. And we are calling upon all the volunteers, Anmol for anchoring, Amrindam from tech team, all the students please come on the stage. Sia, Karam for stage management, Jaya, Arpit, Harshita, Madhav for escorting, a huge round of applause. Pari for attendance, Hardik and Navtej for food, Vikas and Madhav, Karam, Sia, Harshita, Madhav, Sia. I hope I haven't missed anybody. Please, if I have missed it, please come on the stage to accept the certificates. A huge round of applause for all my team members. I request Dr. Raki to please come on the stage. A huge applause for the team. A huge applause for the media team. All the media team, please come on the stage. Media team, please come on the stage. Media team, please come on the stage for the photograph.
And now for the results, I request Amrindam to show the screen of the winners. I cannot show a screen of the winners. I can, however. Okay, who's Captain Police? You need to show your login over here. Captain Police. Okay, huge round of applause for Captain Police. With the highest score. And a wonderful login name. And we have the prize by Steelbird helmet. I request the volunteers, the sponsors to come on the stage. We are grateful to Steelbird India for sponsoring these prizes. Bharti Vidyapeeth, are you with us? Hello. Thank you very much for this. And everyone's played well, I'm sure, but वही 5 top में जो आता है, that's the prize. Which is the next one? Captain Fast. अब आ जाओ. The next is Captain Fast. We have Captain Police and Captain Fast. Captain Fast. Who's Captain Fast? You need to show the login. Team, first check the team login. 3 4 5 भी announce कर दीजिए. Anmol, please check the login. Third is Sir Hacker. Wonderful names. Sir Hacker. So who is Sir Hacker? ₹200 के हेलमेट बिकते हैं. लिखा इस पे. Who is Sir Hacker? This is the story of how a global leader in the helmet industry Who is Sir Hacker? Do we have in the auditorium? and their death. Shall we come to the next? Last call for Sir Hacker. Okay. Jolly Data. स्टील वर्क Who is Jolly Data? 700-800 रुपए का अच्छी कंपनी का मिल जाता है. आपने देखा होगा रोड पे मिल जाता है. अब आप इसमें देखेंगे Free King. उससे ज्यादा सेफ्टी. We have Free King. We are going to show every trick they're going to hide in these fake stampedes. Where is the which is more like kindergarten playing with you? With its small body, that is the Come quick, come quick. You've already seen your result on the leaderboards. fake You already seen. Please come quick. Aram se. don't text those fake voices. We are going to protect your lives. Just your lives. The truth is, 95% manufacturers in the helmet industry are fake. Everyone wants to believe that they're making helmets at a cheaper price so that everyone can afford it. But the reality is way too terrifying. It's a gamble of life and death. Life is about experience. Next is Freak Student. If someone dies today, Freak Student. Do we have? we can decide what we want. These fake manufacturers I can't and hear stop you. putting it on customers. Stop making it. Okay, let's wait. Freak Student. Do we have Freak Student? You should decide what Mr. Police. what
अच्छा आई पहले अच्छा अब आया Steelberg helmets, saving and styling lives since 1964. Buying a new bike feels thrilling, right? Buying a cool helmet is a confident choice. Anybody between freak student and Mr. Police? Mr. Police. The secret of this industry that no one wants you to see. Next we have Mr. Police. A huge round of applause for our sponsors also. Giving such nice helmets. A huge applause for the Steelbird. अपना इंटेंशन है कि ISI मानकर हेलमेट ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग यूज़ करें। ये इंसान की जान पे खेल करता है। जैसे नकली दवाइयाँ वाले इंसान की जान पे खिलवाड़ करते हैं, इंसान की जान पे खेल करता है। रोड साइड पे 200 रुपए के हेलमेट बिकते हैं, लिखा है इस पे भी ISI मार्क है। This is the story of how a global leader in the helmet industry, Steelbird, took a stand against fake helmets and their deadly imitations. स्टीलबर्ग का हेलमेट है जो लगभग 700-800 रुपए का अच्छी कंपनी का मिल जाता है। आपने देखा होगा रोड पे मिल जाता है। अब आप इसमें देखेंगे तो इसमें उससे ज़्यादा सेफ्टी रहेगी। We are going to show every trick they are going to hide in these fake stamp-ins. Whether it's thermocol, which is more like kindergarten play material, whether it's a small bottle, that is the buckle, whether it's a fake DOT helmet, whether it's a fake dot helmet, which never even passed a single dot test, those fake voices that we are going to protect your lives are just your lives. Next we have Fluffy Rabbit and it will be identified by my team. Fluffy Rabbit. Do we have Fluffy Rabbit? Oh great. Come on. They're making helmets at a cheaper price so that everyone can afford it. But the reality is way too terrifying. It's a gamble of life and death. You all will be the grand ambassadors of the campus Bharti Vidyapeeth Educational Complex to teach students about what has been taught today. We can decide what we really want. These fake manufacturers can stop putting it on customers. Stop making it their responsibility. It's yours. Before we request for vote of thanks, I request everybody to stand on their seats. Just stand on their seats. Students on the left and right, join. We'll have a group photograph and then it will be followed by a vote